Hello? Hello, hello? No, Assalamu alaikum, students. Am I clear to you all? Okay. Okay, good. Walaikum assalam. Acha, students, today we will be completing the question or the example we did the day before yesterday. Okay, we were unable to complete it. Okay, since there are only 40 minutes provided by Zoom, so we'll be first completing this question which we left on Wednesday.
Is the question visible on your screens? This is the same question I provided you on Wednesday, on the Wednesday lesson. Okay. See, this question says a closed metal cylindrical container has a base radius of 5 centimeter. Fine. And a height of 12 centimeter. Believe me, it is a very easy question. It says a closed metal cylindrical container has a base radius of 5 centimeter. You people remember that the base of a cylinder is always a circle. It was pre-decided. And given that its height is 12 centimeter, it is asked to calculate the total surface area of the container. Now, students, for finding the total surface area of the container, just recall that we use the or we derive the formula for the total surface area of the cylinder. It was nothing but, see, total surface area of the container. Pi r square, 2 pi r square plus 2 pi r h. How did we derive this formula? I'm just reminding you. We use the formula perimeter into height plus 2 times the area of the base. Find area of the base. So it is very easy. See this, the one which I have shaded, 2 pi r square, because it was said that 2 times the base area. Now the base area is, we very well know that the area of base is pi r square, and 2 times of pi r square is 2 pi r square, isn't it? And then ph, perimeter into height. What was the perimeter of the base? Perimeter of the base, it was 2 pi r, and we multiplied this by h, so we got this formula. I hope you have no difficulty in this formula. It is a very easy formula. Okay, perimeter of the base times height plus 2 times the base area, and remember the base is a circle in a cylinder. Now what we have to do, nothing, just substitute the value of r, substitute the values of h. Beta, you should pay attention on the screen. Okay, Daniel, you also please just see the screen. Everything is mentioned over here. Okay, thank you. You just have to put the value of r and h, and you will get the desired result. Now beta, listen what in part number 2 he is asking. He says the lid of the container is now removed. डस्टबिन की मिसाल होती है ना, डस्टबिन भी सिलेंड्रिकल होता है बाज दफा, उसकी लिड हटा दो, ढक्कन हटा दो, वही वाला केस है समझो. कहते हैं द एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर इंक्लूडिंग द बेस इज पेंटेड ग्रीन. लिड को हटा दिया और जो है ना बेस एंड लिड हटा दी और पूरे एक्सटीरियर बाहरी हिस्से को पेंट किया है ग्रीन कलर से. फाइन. और पूछा क्या है, कैलकुलेट द एरिया विच विल बी पेंटेड ग्रीन and express this painted area as a percentage of the total surface area. First of all, coming up to just the area which we have to paint. आप जानते हो कि हमने जो है ना लिड हटा दी है बेटा, टॉप हटा दिया है, तो जब ढक्कन हट जाएगा तो टॉप पर पेंट कहाँ होगा? फाइन. तो आप जरा सा देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ द कंटेनर दैट इज पेंटेड, वो अब 2 पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा, इट वुड बी जस्ट पाई आर स्क्वायर. हाँ, 2 पाई आर एच वैसे ही रहेगा. पता है क्यों? क्योंकि एरिया, सरफेस एरिया जहां पर पेंट होगा उसमें से टॉप वाला पाई आर स्क्वायर हट गया. तो फॉर्मूले में क्या होता था, 2 टाइम्स बेस एरिया. तो बेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर था, लेकिन अब टॉप तो हटा दिया ना. इसमें क्या लिखा है, एन ओपन सिलेंडर हैज ओनली वन बेस एंड अ कर्व सरफेस. दो बेसिस थोड़ी होती हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे. फॉर्मूले में क्या पुट करोगे, देखो पेरीमीटर इनटू हाइट जब पुट करोगे ना, वो तो ये चीज आ जाएगी. फाइन. लेकिन पाई आर स्क्वायर जो है ना, ये कैसे आया, क्योंकि बेटा 2 टाइम्स बेस एरिया किया, यानी एक टॉप वाली बेस और एक बॉटम वाली बेस, तभी तो 2 पाई आर स्क्वायर आया था. पिछले केस में हमने टॉप वाले बेस का एरिया भी ऐड किया
और बॉटम वाले को भी ऐड किया, लेकिन अभी टॉप तो है ही नहीं लिड तो हटा दी, तो सिर्फ बॉटम बचा ना, तो सिर्फ बॉटम बचा, तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखूंगा। बेटा गॉट दिस पॉइंट? प्लीज क्विकली टेल मी, गॉट दिस पॉइंट? आई एम वेटिंग यू ऑन द चैट। Rest of them, I have got the response from Saad and Daniel. बेटा दानियाल ओके दानियाल देखो, इसमें कह रहा है कि सिलेंडर की लिड जो है ना वो हटा दिए। अब जब लिड हटा दिए तो टॉप तो हट गया, बॉटम बचा, सिर्फ खाली हो गया ना, टॉप तो हटा दिया ढक्कन। तो अब क्या होगा, जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो फॉर्मूले में होता था 2 टाइम्स बेस एरिया। टॉप को भी ऐड करते थे, नीचे को भी ऐड करते थे, लेकिन अब टॉप तो है ही नहीं ना, तो टॉप को क्यों ऐड करूं? तो पाया 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर थोड़ी होगा, सिर्फ नीचे वाली बेस होगी। ये बात मैं कह रहा हूँ, टॉप वाली बेस तो हट गई ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। An open cylinder has only one base and a curved surface. That is why we have used pi r square. Now just put the value of R and H to get the value area of the container that should be painted is 456. और आखिर में हमसे पूछा था express this painted area as the percentage of total surface area. In part 1 we found the total surface area, or in second part this one 456, this was the painted area. कह रहे हैं इसको express करो as a percentage, ये आप पहले कर चुके, देखो 145 को जस्ट डिवाइड करा दो, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया निकालना था ना, तो टोटल को अपॉन में रख दो और जो निकाला उसको ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई 100, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, रिक्वायर्ड परसेंटेज एरिया। अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स वी आर सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ओके। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर, it is a very easy topic, everybody has to pay attention. What is a half cylinder? Beta, if a cylinder is divided into two equal parts by cutting it longitudinally. If I cut a cylinder, what would be I'll be left with? I'll be left with a half cylinder. Okay? And half cylinder. How is it achieved? Confused? I have a diagram beta here for you. See this. On my left, the whole painted red. In red there was a cylinder, solid cylinder. Okay, what I did, I took a knife and I cut it from the center of the base, from the top. Okay, and I got this thing. We also used to cut fruits and vegetables like this also. पाइनएप्पल को कट करोगे बीच में से किसी भी चीज को, तो ऐसे ही आएगा। नाउ दिस वन you can see the cursor moving round. This one is the half cylinder. Got it? Very easy. Now beta, we have few formulae. We have the formula for volume of this half cylinder and volume of sorry, the surface area of the half cylinder. Yes beta, Faraz, you are also right. Acha Musa, you are asking how was the radius 5? Because it was given in the question. See, radius was 5. Okay. ठीक है। नाउ बेटा, दिस इज द हाफ सिलेंडर। अब हमें जो है ना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम करना है फॉर हाफ सेमी सॉरी फॉर दिस हाफ सिलेंडर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस डायग्राम, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस डायग्राम। ओके, एक दफा जो है ना हैव अ लुक, सी ये तो हम जानते हैं कि in a cylinder the top base has an area of pi r square and the perimeter of the base, पूरा perimeter of the base is equal to 2 pi r. Fine. लेकिन when we come up to half cylinder, see the base is not now a full circle, it is a semicircle. Saad, pay attention. Saad,
Pay attention, please. Now in a half cylinder, the base is no more a full circle, but it is a semicircle. Very easy. So our semicircle हो गया, तो area of base क्या pi r square होगा? No, it would be pi r square upon 2. I have written, see, area of base of half हो जाएगी ना, pi r square का half हो जाएगा क्योंकि semicircle हो गया, तो area भी half हो जाएगा. अब पेरीमीटर इनिशियली 2 पाई आर था फुल सर्कल का, फुल बेस का, लेकिन अब हाफ हो गई है, सेमी सर्कल हो गया, तो उसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, विच कम्स आउट टू बी जस्ट पाई आर. फाइन, ओके. नाउ बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ हाफ सिलेंडर. अच्छा, एक्चुअली द थिंग इज द बेस इज नो मोर अ सर्कल. आई हैव रिटन इट ओवर हियर. It says the base is no more a circle. In fact, it is a semicircle. Fine. Base is no more a circle, na? It is a semicircle. We are talking about half cylinder, remember? So the formula for volume of half cylinder would be nothing but base area into height. This was the, I think, the previous formula you used. You have been using this for all sort of prisms. And I told you in the previous lesson that cylinder is also a prism. Half cylinder is also a sort of prism, almost a sort of prism. So base area into height. Now here base area was half pi r square, height was h. So this is the formula for finding the volume of the half cylinder. Then surface area of the cylinder. See student, we use this formula. This is a very popular formula. We've been using this since last week for all sort of prism. See, perimeter into height. Remember, we are talking about half cylinder. Perimeter was pi r and h along with it. 2 times base area. Just now base area is half pi r square of a half cylinder. Evaluating this, 2 cancels out with 2. We are left with pi r square, and pi r h in the first term remains the same. These are the formula for finding the volume and surface area of a half cylinder. I repeat, a half cylinder. अच्छा बेटा, you have an alternate method also. पता ही क्या करो? Do nothing, but बस आप क्या करो, वो ऐसे भी अगर आप फॉर्मूला, आप कहो ये क्या बात हुई, इतने सारे फॉर्मूले मुझे याद करने के लिए आ गए, मैं क्या करूं भाई, ये तो बड़ी टीजिंग चीज है. कुछ नहीं करो, आप फुल सिलेंडर के फॉर्मूले याद कर लो, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के, पूरा जो है ना आप फुल सिलेंडर के फॉर्मूले याद कर लो. फाइनली पता है क्या कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, है ना भाई, आधे का आ जाएगा हाफ सिलेंडर का. ऊपर वाले फॉर्मूले ना यूज करो, ये कर लो चाहो तो. सरफेस एरिया में भी क्या करो, वही फॉर्मूला. देखो टॉप में जो है ना, इसके टॉप में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, ये वॉल्यूम ऑफ फुल सिलेंडर था, मैंने होल को 2 से डिवाइड करा दिया. आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो. समझ में आया? गॉट दिस पॉइंट? भाई आप फुल सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करो, बस इसको होल डिवाइड बाय 2 कर दो. होल डिवाइड बाय 2 मींस नथिंग बट यू हैव हाफ्ड द वॉल्यूम. और हम हाफ सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं. वेरी इजी बेटा. हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू पीपल. It's a very effective example. I hope you will grasp the concept from this example. It says the diagram shows a piece of wood. The piece of wood is a prism of length 350. अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, ये हाफ सिलेंडर है. प्रिज्म की डेफिनेशन पर भी पूरा उतर रहा है स्पेसिफिकली, तो ये एक हाफ सिलेंडर है ना भाई. प्रिज्म तो बहुत किस्म के होते हैं. आपके ऊपर है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, कि आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ वाकई ये जो है एक हाफ सिलेंडर है. प्रिज्म कह दिया तो क्या हुआ, हाफ सिलेंडर तो है ये. और इसके डायमेंशंस भी दे दिए. सी इट सेज द पीस ऑफ वुड इज अ प्रिज्म ऑफ लेंथ 350. इसकी पूरी लेंथ 350 है. द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज अ सेमी सर्कल विद डायमीटर. देखो इतनी सारी हिंट दे रहा है, वो कह रहा है कि सेमी सर्कल है उसका क्रॉस सेक्शन, यानी ये फेस, जिस ये फेस, और इसका डाया इस दफा दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर. ही इज आस्किंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ वुड. फाइन, वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ वुड, ये फाइंड करने को क्या है कि पूरे वुड का वॉल्यूम कितना है. अच्छा स्टूडेंट्स, हियर आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल पीपल
do you know what volume is? Actually, let me tell you. देखो इस बात को अच्छे से समझ लेना, वॉल्यूम क्या होता है आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं फिर से एक रिमाइंडर दिलाना चाहता हूँ, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ हियर, आपके जहनों में होनी चाहिए. वॉल्यूम इज एक्चुअली विथ हाउ मच मटीरियल एनी ऑब्जेक्ट इज मेड. वो कितना मटेरियल है, हाउ मच वॉल्यूम, कितना वो मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, वॉल्यूम ये बताता है. सही है, आपने ये डेफिनेशन तो पढ़ी होगी. ओके, यू माइट हैव स्टडीड दिस डेफिनेशन इन द प्रीवियस क्लासेस, दैट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम. ठीक है, ये भी होती है, लेकिन वो हॉलो चीज के लिए होती है. कोई चीज हॉलो हो ना, तो तब हम कहते हैं स्पेस कितनी है उसके अंदर, दैट इज वॉल्यूम. ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लेकिन सॉलिड बॉडी जो होती है ना, उसका वॉल्यूम अगर हम निकालें ना, तो पता है क्या चीज पता चलती है, स्पेस नहीं पता चलती. सॉलिड के अंदर तो कोई जगह ही नहीं होती. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द स्पेस इन इट, इन इनसाइड इट? ये तो बेकार बात हुई. सॉलिड बॉडी में वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना मटेरियल लगा उसको बनाने में. बेटा, गॉट दिस पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी. हॉलो के लिए वॉल्यूम मींस उसके अंदर स्पेस कितना है वो पता चल जाता है. सॉलिड के लिए वॉल्यूम निकालो तो पता चलता है टोटल मटेरियल कितना है. ये पॉइंट प्लीज मेक इट क्लियर. ओके, अदनान गॉट दिस पॉइंट. Bilal also got this point. Qasim on. Okay. Thank you. सही है. तो अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ वुड. तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दे दिया. यानी वॉल्यूम से मतलब कि वो टोटल मटेरियल कितना लगा फॉर द कंस्ट्रक्शन. बेटा मूसा, आई एम सेइंग कि जब भी आप किसी हॉलो चीज का वॉल्यूम निकालते हो ना, तो वो बताता है कि उसके अंदर स्पेस कितनी है. और अगर आप किसी सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम निकालो ना, तो बताता है कि वो टोटल मटेरियल उसकी मेकिंग में कितना लगा, वो कितना है, मटेरियल है कितना जिससे वो बना हुआ है, कुल मिला के कितना मटेरियल है. लोहे का अगर आपने एक सिलेंडर बनाया और मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, तो वॉल्यूम वो जो आएगा ना, जो ऊपर भी क्वेश्चन में आया, उससे पता चलेगा कि वो टोटल मटेरियल कितने मटेरियल पर वो मुश्तमिल है, वो कितने मटेरियल पर बना है. ये मतलब होता है टोटल मटेरियल लगा कितना उसको बनाने में. ठीक है मूसा? ओके, ठीक है. अब ये चूंकि बेटा इन दिस एग्जांपल द वुड वाज अ सॉलिड. सी देखो, वुड को, लकड़ी को बीच में से काटोगे, कुछ इसी तरह की शेप आ जाएगी ना, कुछ इसी तरह का अंदर कलर भी होता है. So it is nothing but, now it is up to you. You have to identify the sort of prism. हो सकता है इन एग्जामिनेशन वो आपको डायरेक्ट नहीं कहे जी ट्रेपीजॉइडल प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सिलेंडर, कुछ ऐसा ना कैसे प्रिज्म कह दे. आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस काइंड का, किस टाइप का ये प्रिज्म है. नाउ हियर इट इज अ half cylindrical prism. See what is the solution says. The solution says, I am reading it. It says the prism is basically a half cylinder. I got it. मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रिज्म हाफ सिलेंडर है. सो वी विल फाइंड द वॉल्यूम यूजिंग द फॉर्मूला फॉर हाफ सिलेंडर. हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे वॉल्यूम मालूम करने के लिए? हाफ सिलेंडर का लगाएंगे. अच्छा, हेयर ऑब्जर्व स्टूडेंट, हेयर लेंथ ऑफ द वुड इज बेसिकली प्लेइंग द रोल फॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर. नहीं समझे आप लोग? भाई लेंथ ऑफ द वुड, उसने तो लेंथ दे दी थी, लेकिन मैथमेटिकली हमारे केस में हमने तो इसको हाफ सिलेंडर माना है ना, तो इसके लिए तो ये हमारे लिए 350 सेंटीमीटर लेंथ नहीं, एक सॉर्ट ऑफ हाइट का रोल क्रिएट कर रही है, प्ले कर रही है. और देखो इसकी बेस भी हमने अभी डिसाइड किया था, या डिसाइड किया था, होती है कि बेस ऑफ द हाफ सिलेंडर इज अ हाफ सर्कल और अ सेमी सर्कल. अब उसका डायमीटर दिया हुआ है. अब बेटा डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर दिया. डायमीटर किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं होता है, रेडियस इस्तेमाल होता है. सो वी आर वेरी वेल अवेयर दैट रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर अपॉन 2. तो डायमीटर 1.2 डिवाइडेड बाय 2, वी गॉट द रेडियस, बिकॉज रेडियस वुड बी यूज. डायमीटर जब होता है तो रेडियस मालूम करना कोई मुश्किल नहीं होता.
नाउ द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। देखो हाफ सिलेंडर था, वॉल्यूम निकालना था, मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला ये अप्लाई कर लिया। सी पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 ऐसे लिख लो या पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 लिख लो, एक ही बात है। कहाँ गया भाई, हेयर सही है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। what I have done, I have just shifted the values, I have just substituted the values of r। r अभी हमने निकाला था 0.6। देखो डायमीटर को लिए लिए क्या करते, डायमीटर इज नॉट अफेक्टिव, आर अफेक्टिव है, आर चाहिए था तभी डायमीटर से आर निकाला। और एच वॉज 350, और जब इसको इवेल्युएट कर लिया 198 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ गया। ये सॉलिड पूरी वुडन हाफ सिलिंड्रिकल शेप्ड वुड का वॉल्यूम आया बेटा। इसका मतलब वो पूरी वुड थी कितनी, इन एग्जामिनेशन वो वर्ड चेंज भी कर सकता है, वो कह सकता है बताओ टोटल वुड कितनी थी, तो पता चल जाना चाहिए टोटल वुड थी कितनी, कितना मटेरियल ऑफ वुड यूज हुआ उस हाफ सिलिंड्रिकल वुडन शेप को बनाने में, तो समझ जाना वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, मास वास नहीं ले आइएगा बीच में, वेट वगैरह। Now, beta, we are very short of time. Quickly see this last topic and a single example. Then you will be taking off. Hollow cylinder. देखो बेटा, pay attention. What is a hollow cylinder? Hollow cylinder is a cylinder which is vacant from inside and has some difference between the internal and external radius. अच्छा, it might be confusing for you. Definition confuse कर रही होगी, लेकिन बेटा don't worry, I have several examples for you. Let me check the chat box. What is a hollow cylinder? Saad, I am explaining the similar thing. See, hollow cylinder ऐसा cylinder होता है which is vacant from inside and has some difference between the internal and external radius. अच्छा, confused जो हो गए परेशान ना हो, I have few examples for you. See, metal pipe, tissue roll, ये hollow cylinder है। क्लियर हो गया होगा, आई होप ये एग्जाम्पल्स ने क्लियर कर दिया होगा। देखो ये है तो सिलेंडर लेकिन ये हॉलो है। टिश्यू रोल, इवन के वाटर वेल, पानी का कुआं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, अच्छा, नाउ सी दिस फिगर। इसमें पता ही क्या होता है बेटा, आपने देखो देखो टिश्यू रोल को देख लो एक दफा, ये लेफ्ट पे ऑन योर लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, ये एक टिश्यू रोल बना है। देखो टिश्यू रोल के अंदर जो छोटा सा सर्कल बन रहा है ना, प्लीज यार पे अटेंशन, दानियाल यू ऑल्सो पे अटेंशन। ये जो टिश्यू रोल में जो अंदर छोटा सा सर्कल है ना, इसका रेडियस स्मॉल आर होता है, और ये बाहर वाला पूरा टिश्यू समेत टिश्यू जो रोल हुआ है इस पूरे का रेडियस कैपिटल आर लिया जाता है। सी नाउ सी दिस फिगर। देखो ये पूरा जो ब्लैक लाइन है ना, ये पूरा बड़ा आउटर सर्कल कहते हैं इसको, इसका रेडियस कैपिटल आर होता है। एंड ये जो छोटा सर्कल अंदर होता है ना हॉलो पार्ट का, इसका रेडियस जो है ना बेटा, वी टेक दैट एज स्मॉल आर टू क्रिएट सम डिफरेंस। ठीक है, ग्रीन वन इज द स्मॉल सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल दैट इज स्मॉल आर, और पूरे बड़े सर्कल का, पूरे बड़े सर्कल का फ्रॉम पूरा ये जो बड़ा है इसका कैपिटल आर। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन बेटा, वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स, तो जल्दी से करना है हमने, टाइमर आ गया मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर कैसे निकलेगा? देखो वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, लेट मी चेक द चैट बॉक्स। यस मूसा, यू आर क्वाइट राइट। अच्छा जल्दी से बेटा हैव अ लुक एट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ हाफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ अ हाफ सिलेंडर, बेस एरिया इनटू हाइट, ये तो फॉर्मूला, इट इज द बेसिक फॉर्मूला, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। बट सी बेटा, जरा सा गौर करना मेरी बात पर, पॉइंट समझ में आ जाएगा आपके, कि देखो हॉलो सिलेंडर में जो बेस होती है ना, हॉलो सिलेंडर में जो बेस होती है वो सिर्फ ये रेड पार्ट होता है। ठीक है, पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। ये सिर्फ रेड पार्ट जो होता है ना हॉलो सिलेंडर में, सिर्फ यही बेस होती है। पहले की तरह फुल सर्कल नहीं होता, पहले की तरह फुल सर्कल नहीं होता। कि मेक इट वेरी क्लियर, इन अ हॉलो सिलेंडर
बेटा द बेस इज जस्ट दिस रेड पार्ट, ओके। हॉलो होता है ना बीच में, अंदर तो जगह नहीं होती, तो फिर उसको कैसे बेस लूं? ठीक है, ये दिस रेड पार्ट इज द बेस। नाउ अगर ये बेस है तो इसका एरिया क्या होगा? बेटा थोड़ा सा पे अटेंशन करना, पता है इसका एरिया क्या होगा? आउटर सर्कल का एरिया निकालो फुल सर्कल का, और उसमें से माइनस करा दो बीच में जो व्हाइट सर्कल है, तो इस पट्टी का एरिया आ जाएगा, रेड पट्टी का, रेड एरिया का बिल्कुल आ जाएगा। पूरे फुल सर्कल का मालूम कर लो एरिया, जिसमें कैपिटल आर रखो, और उसमें से माइनस करा दो बीच वाले सर्कल का एरिया, जो व्हाइट इन पोर्शन है हॉलो पार्ट का, तो आपके पास इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। एंड यस, दैट इज द बेस एरिया फॉर अस, ओके, दैट इज द बेस एरिया फॉर अस। ये देखो बेस एरिया मैंने क्या किया, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो सेम रही ना हाइट, तो ये एज इट इज कॉपी हो गई, ये हाइट थी, ये एज एज इट इज कॉपी हो गया। क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। बहुत आसान है वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर निकालना, बेस एरिया बहुत आसान है। वो जो रेड पोर्शन था ना उसका कैसे निकलेगा, आउटर सर्कल बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, दोनों का एरिया मालूम करो, तो ये रेड पोर्शन दैट वाज द बेस फॉर अस, इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, जरा सा गौर करें सरफेस एरिया कैसे आएगा। देखो बेटा सरफेस एरिया के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। पेरीमीटर, देखो ये एच जो है ना, ये तो मैंने यहाँ एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ये पेरीमीटर जो है ना, ये पूरा है, ये कैसे आया, 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई आर, ये पता है ऐसे आया कि जरा सा आप गौर करें, 2 पाई आर, ये जो आउटर सर्कल था ना, ये जो बेस थी आपकी, सॉरी, ये जो बेस का पूरा पेरीमीटर कितना था, बेस याद रहे ये रेड पोर्शन है, इसका पेरीमीटर कितना था, 2 पाई आर, तो ये तो 2 पाई इंटू कैपिटल आर ना, फुल सर्कल की बात करो, बाहर ही बाहर देखो। लेकिन बेटा अगर आप देखो पेरीमीटर सिर्फ ये तो नहीं है, पेरीमीटर एक चीज और भी है, वो पता है क्या? अरे सर्कल के, हॉलो सर्कल के अंदर भी तो शेप होगा। इधर देख लो बेटा एक दफा, इधर लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, ये देखो, ये जो मेटल पाइप है हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर का है, अंदर हाथ डाल लेते ना, पाइप के अंदर हाथ डालें तो ये सरफेस होगी, ये भी तो एक सरफेस है ना भाई। तो क्या आप इसको सरफेस एरिया में नहीं इंक्लूड करोगे? कल को पेंट करोगे तो क्या ये सरफेस नहीं इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। तो उसका एरिया पता है कैसे निकलेगा? बस क्या कराओ, ये जो स्मॉल सर्कल था ना, इसका पेरीमीटर लो और मल्टीप्लाई करा दो पूरी हाइट से, तो ये अंदर वाले एरिया का जो है ना, आपके पास अंदर वाले हिस्से का सरफेस एरिया आ जाएगा। कैसे देखो, 2 पाई आर था पूरा पेरीमीटर, इसको मैंने हाइट से मल्टीप्लाई करा दिया तो बाहर बाहर सरफेस का आ गया, और 2 पाई आर स्मॉल आर वाले का किया ना, तो और फिर एच से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास अंदरूनी हिस्से का एरिया आ जाएगा। और 2 टाइम बेस एरिया तो करते ही हैं हमेशा, वो आपने पीछे किया हुआ, बेस एरिया आपने निकाला था इस तरह से पीछे भी, तो ये पूरा फॉर्मूला सरफेस एरिया आ गया मालूम करने के लिए हॉलो सिलेंडर का। अच्छा बेटा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, वी आर लेफ्ट विथ 5 मिनट्स। ये फिगर शो करता है एक सेक्शन ऑफ अ मेटल पाइप। देखो एक मेटेलिक पाइप है, ये हॉलो है, ठीक है, इसका कह रहे हैं इंटरनल रेडियस यानी कि स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर है, और एक्सटर्नल रेडियस जो है ना बेटा वो 2.4 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन 10 सेंटीमीटर, फाइन। कह रहे टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, और हाउ मच मेटल इज यूज इन इट्स मेकिंग। ओहो, अगेन द सेम वर्डिंग, कितना मेटल यूज किया है इसकी मेकिंग में, क्या मालूम करेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी, कैन एनीबॉडी टेल मी, मेकिंग का क्या मतलब है उसकी मेकिंग में? एग्जैक्टली वॉल्यूम। साद इज ऑल्सो राइट, अदनान इज ऑल्सो राइट, एंड आई होप एवरीबडी आंसर वुड बी द सेम। कासिम यू आर ऑल्सो राइट। तो quickly have a look at the question. How to solve this? Beta, Musa and Yusuf, we are already short of time. You can ask this on my WhatsApp or with your class teacher. Thank you.
देखो बेटा, लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस याद रखना, जो हॉलो पार्ट होता है ना अंदर का छोटा, टिश्यू पेपर रोल घर जाके देखिएगा आप, उसमें अंदर का जो छोटा सर्कल होता है ना, वो इनर सर्कल कहलाता है, और जो पूरा बाहर वाला एक सर्कल बनना होता है बाउंड्रीज पे, वो आउटर सर्कल कहलाता है। और छोटे सर्कल का रेडियस इंटरनल रेडियस या इनर रेडियस, और बाहर वाले का एक्सटर्नल सर्कल का एक्सटर्नल रेडियस। बहुत आसान। कम अप टू द सोल्यूशन। देखो मैंने डेटा बना दिया है। हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है, कैपिटल आर 2.4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इनर 2 सेंटीमीटर। देखो ये सब दे दिया, कुछ भी नहीं किया, मैंने उसी फॉर्मूले में पुट कर दिया जो अभी ऊपर डिराइव कराया था। टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा कैलकुलेशंस पर गौर नहीं कर रहा, आप लोग समझदार हैं, कैलकुलेशंस इजी हैं। टोटल मटेरियल पर आ जाते हैं। देखो टोटल मटेरियल अभी आप लोग ने बताया, टोटल मटेरियल सर इज नथिंग बट द टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। हॉलो सिलेंडर के लिए लगाइएगा बेटा, बट मेक श्योर यू यूज द राइट फॉर्मूला। पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई इन टर्म्स ऑफ पाई, आसानी ये है कि पाई को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, एंड में इवेल्युएट किया जाए, शुरू में वैल्यू पुट ना की जाए, इजी रहेगा आपके लिए, वेरी इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। एच 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कैपिटल आर आउटर रेडियस 2.4 दिया था, इसका स्क्वायर, स्मॉल आर 2 दिया हुआ था, उसका स्क्वायर। when we evaluate this we are left with 17.6 pi, and when we will put the value of pi we will get the volume which is coming up to be pi r square minus pi r square into h। हाँ हाँ बेटा अदनान, मैंने वही लिखा है, मैंने h को पीछे लिख लिया है, ओके डोंट वरी। सही है। So class, this was the total lesson for today. Hope you have got this lesson. I will be posting this in Google Classroom also.